کہ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے فیصلہ کے بس اڈے بند۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امن و امان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے لاہری اڈے بند کر دیے گئے۔ صرف چھوٹی تحصیلوں میں گاڑیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری۔ مسافر سفر کرنے کے لیے خوار، دھکے کھاتے شہری بھی پھٹ پڑے۔ بولے بس میں کئی گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں لیکن روانہ نہیں ہوتی۔ فیملی کے ساتھ اڈوں پر قید ہو گئے ہیں۔ لوکل ہی جا رہی تھی، لوکل ہی جا رہی ہے۔ لیکن لانگ روٹ کے لیے نہیں، لانگ روٹ بند ہے۔ شہریوں کو بھی خاصی مشکلات و دقت کافی ہے، اس لیے تو بہت مشکل ہے کافی۔ یہی جو ہے وہ گھنٹے سے کھڑی اور جب تک سواریاں نہیں بتے تو نہیں چلے گی۔ ایسی ہے نا، ہماری فیملی ہے، کافی دیر کی ویٹ کر رہی ہے، نہیں بس جا رہی ہے ابھی تک۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال قومی شاہراہیں اور موٹر ویز کو بند کیا گیا۔ M3 M4 پر ٹریفک کی روانی روک دی گئی۔ شہریوں کو متبادل راستے استعمال کرنے کی ہدایت۔ ایک جانب موٹر وے بند تو دوسری جانب بس اڈوں پر شہری خوار ہو رہے ہیں۔ کیمرامین اشفاق بخاری اور ساتھی رپورٹر عمران جھا کے ساتھ حسین نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ موٹر وے کی بندش کے بعد بڑے شہروں کو جانے والی ٹریفک بھی بند رہی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ موٹر وے کی بندش کے بعد جھنگ سے بڑے شہروں کو جانے والے ٹریفک بھی بند ہو گئی۔ فیصل آباد، اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور کو جانے والی ٹریفک بند ہونے کے باعث مسافروں کو مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ لاری اڈا سمیت دیگر بس اسٹینڈ سے بھی کوئی گاڑی کسی شہر کو نہ جا سکی۔ مسافر پرائیویٹ گاڑیوں پر مہنگے داموں اپنی منزل پر پہنچنے پر مجبور۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ جلد از جلد موٹر وے کی بحالی کو یقینی بنایا جائے۔ لاہور یا فیصل آباد جانو سر، آپ کے سامنے سارے اڈے بسز بند پڑی ہیں۔ اب اپنی اسپیشل گاڑی کروانے جانا پڑتا ہے، وہ ڈبل ٹرپل کرایہ۔ اب کوئی نہیں بھی افورڈ کر سکتا، وہ بیچارہ کیا کرے؟ کسی کا مریض، کسی کا کچھ ہے، سارے راستے بند ہیں، سارے اڈے بند ہیں، اب ہم کیا کریں؟ چنیوٹ شہر میں امن و امان کی صورتحال، اہم چوک چوراہوں پر پولیس موجود رہی۔ پل دریائے چناب ٹریفک کے لیے بند رہا۔ شہر کے خارجی راستوں کو رکاوٹیں لگا کر بند کر دیا گیا۔ دریائے چناب پل بند ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہی۔ لاری اڈوں سے لاہور، اسلام آباد جانے والے ٹرانسپورٹ مکمل بند رہی۔ راستے بند ہونے سے مسافر پریشان ہوئے، جبکہ چنیوٹ سے پنڈی بھٹیاں، بھوہانا، سرگودا، جھنگ تک ٹرانسپورٹ بحال رہی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد پولیس امن و امان میں خلل ڈالنے والوں کے خلاف متحرک۔ سی پی او کامران عادل کا لاری اڈوں کا دورہ۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امن و امان کی صورتحال قائم رکھنے کے لیے فیصل آباد پولیس متحرک۔ سی پی او کامران عادل کا لاری اڈے کا دورہ۔ صورتحال کا جائزہ لیا۔ پولیس اہلکاروں کو امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کی ہدایات۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور امن عامہ میں خلل ڈالنے پر گرفتاریاں۔ امن و امان کی خلاف ورزیوں پر MP بشارت ڈوگر گرفتار۔ عبداللہ کالونی سے حسنین اور اکرم کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ فیصل آباد میں PTI کارکنان کی پولیس کو چکمہ دینے کی کوشش۔ باراتیوں کی شکل میں جاتے 27 کارکنان کو پولیس نے دھر لیا۔ کارکنان پھولوں سے سجی گاڑیوں میں باراتیوں کی شکل میں جا رہے۔ پولیس نے تلاشی لی تو شناخت PTI کارکنان سے ہوئی۔ چنیوٹ میں دریائے چناب پل بند ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ باراتیوں کو بھی دشواری کا سامنا۔ سرگودا سے آنے والے دلہے کا کہنا تھا کہ کئی گھنٹوں سے ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، ہال تک نہیں پہنچ سکے۔ ہم سرگودا سے آ رہے ہیں، بہت خوار ہو کر آ رہے ہیں، راستے بند کیے ہوئے ہیں حکومت کی جانب سے۔ جو یہ چل رہا ہے صحیح ہے PTI والوں کا، تو لیٹ ہو گئے ہیں بہت زیادہ۔ فون آ رہے ہیں پیچھے ان سے، میرج ہال والوں سے۔ اہم شاہراہیں بند ہونے سے لوڈرز اور ڈمپرز کی بھی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں سبزیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں ہفتہ بھر پھل اور سبزیوں کے نرخ اوپر نیچے ہوتے رہے۔ سبزیاں مہنگی ہوئی تو گراں فروشوں نے اور مہنگائی کر دی۔ آلو ایک ہفتے میں 10 روپے سستے ہو کر 120 کلو مقرر، بازار میں 140 روپے کلو فروخت۔ پیاز 18 روپے سستا ہو کر سرکاری قیمت 122 جبکہ بازار میں 150 روپے فروخت ہوتا رہا۔ ٹماٹر 10 روپے سستا، سرکاری قیمت 170 روپے جبکہ بازار میں 220 روپے کلو دستیاب۔ ادرک کی قیمت 475 مقرر کی گئی، بازار میں 600 روپے بکتے رہے۔ لہسن 10 روپے مہنگا ہو کر سرکاری قیمت 680 روپے مقرر جبکہ بازار میں 800 روپے کلو میں فروخت ہوتا رہا۔ سبز مرچ 5 روپے مہنگی 125 روپے مقرر، بازار میں 140 روپے فروخت ہوتی رہی۔ پھول گوبھی 5 روپے سستی، سرکاری قیمت 80 جبکہ بازار میں 100 روپے فی کلو میں فروخت ہوتی رہی۔ بینگن ایک ہفتے میں 20 روپے سستے ہوئے، سرکاری قیمت 57 روپے مقرر، بازار میں 90 روپے کلو فروخت کیے جاتے رہے۔ مٹر ایک ہفتے میں 15 روپے کلو مہنگے، سرکاری قیمت 200 جبکہ بازار میں 250 روپے فی کلو میں بکتے رہے۔ کریلا ایک ہفتے میں 35 روپے کلو سستا، سرکاری قیمت 105 روپے مقرر کی گئی جبکہ بازار میں 130 روپے کلو فروخت ہونے لگا۔ شہری کہتے ہیں حکومت ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کروائے تاکہ سستے داموں سبزیوں کی فراہمی مکمل بنائی جا سکے۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔
और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन में ब्रायलर ने एक बार फिर ऊपर की जानिब उड़ान भर ली है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। झंग में चिकन की कीमत में मामूली तब्दीली, 468 रुपए किलो पर मुस्तहकम। अंडे 2 रुपए इजाफे के बाद 345 रुपए दर्जन पर पहुंच गए। मछली के नर्ख 510 से 610 रुपए किलो के माबैन तय पाए। नए आलू की कीमत में 5 रुपए का इजाफा, नई कीमत 135 रुपए किलो मुकर्रर। प्याज की कीमत में 20 रुपए कमी, 145 रुपए किलो मुकर्रर कर दी गई। टमाटर 20 रुपए इजाफे के बाद 180 रुपए किलो तय पाई। शकरकंदी 30 रुपए सस्ती होकर 80, जापानी फल 40 रुपए महंगा 320 रुपए किलो मुकर्रर हो गए। न्यूयॉर्क मार्केट कमेटी के नर्ख सिर्फ दिखावे के रह गए। सब्जियों और फलों की कीमतों में रद्दोबदल रिकॉर्ड किया गया। करेला 20 रुपए महंगा होकर 130, जबकि गाजरें 10 रुपए सस्ती होकर 60 रुपए किलो रही। सब्ज मिर्च 5 रुपए किलो महंगी होकर 120 रुपए किलो हो गई। बैंगन 25 रुपए से बढ़कर 75, गोभी 80, शिमला मिर्च 30 रुपए कम होकर 220 रुपए रही। टैक्सिंग में भी फल सब्जियों के नर्ख ऊपर नीचे। टमाटर की कीमत 45 रुपए से बढ़कर 180 रुपए किलो तक पहुंच गई। प्याज की कीमत 140 रुपए पर बरकरार रही। लहसुन 40 रुपए इजाफे के बाद 660 रुपए किलो हो गया। सब्ज मिर्च की कीमत 45 रुपए कम होकर 125 रुपए किलो रही। करेला 40 रुपए महंगा होकर 140, गोभी 20 रुपए बढ़कर 90 रुपए रही। केला 10 रुपए महंगा होकर 125 रुपए दर्जन रहा। और अब आपको बताएं कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए इकदाम किए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमे एक्साइज एंड टैक्सेशन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ मुतहरिक 70,000 से ज्यादा अफराद को टैक्स जमा करवाने के परवाने जारी कर दिए गए। नोटिस पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का फैसला। तमाम नादहिंदगान की जायदादें सील। बड़े डिफाल्टर्स के खिलाफ मुकदमात का अंदराज भी करवाया जाएगा। एक्साइज हुकाम के मुताबिक रवा माली साल के टैक्स अहदाफ की तकमील के लिए तमाम तर वसाइल बुरुवेकार लाए जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। के फैसलाबाद में बेनामी जायदादों और असासों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए ऐलान करदा एंटी बेनामी एडिशनल जोन के मंसूबों पर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में एंटी बेनामी एडिशनल जोन के क्याम का मंसूबा सिर्फ कागजात तक महदूद होकर रह गया। एडिशनल एंटी बेनामी जोन का ऐलान तो किया गया, मगर FPR हेडक्वार्टर की जानिब से जगह का तयन और फंड्स की फराहमी के लिए कोई इकदाम न किया जा सका। स्पेशल जोन में किसी मुलाजिम की तैनाती भी न हो सकी। 2 साल कबल बेनामी जायदादों और असासों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए एडिशनल एंटी बेनामी जोन की मंजूरी दी गई थी। FPR हुक्काम के मुताबिक एंटी बेनामी जोन के क्याम की मंजूरी हेडक्वार्टर की जानिब से दी गई थी, ताहम फंड्स न मिलने की वजह से मंसूबा इल्तिवा का शिकार हो रहा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। रुख करें झंग का और आपको बताएं कि झंग फेस्को की नाअहली मौत जमीन से 1.5-2 फीट की दूरी पर। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फेस्को की नाअहली ताजरों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। शहरियों के सर पर खतरात मंडराने लगे। बिजली की लटकती बेहंगम तारों के बायस शॉर्ट सर्किट और आग लगने के मुतअद्दिद वाकयात रूनुमा, मगर महकमा फेस्को की रिवायती सुस्ती बरकरार। ताजरों की जानिब से दी गई मुतअद्दिद दरखास्तें रद्दी की टोकरी की नजर हो गयी। हर वक्त डर ही रहते इस चीज का। एक तो ये कि देखें आप, तारे आपके सामने ओपन है हर चीज इसकी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है किसी टाइम भी, यानी डर ही रहता है इसका। तो हुकूमत से इल्तिजा भी है, अपील भी है, इसका कुछ ऐसा किया जाए ना कि मतलब ये कवर हो जाए। ताजरों का कहना था कि फेस्को इंतजामात करने की बजाय टाल मटोल से काम ले रही है। हादसा से बचने के लिए बेहंगम तारों का मुस्तकिल हल किया जाए। हर वक्त जो से ना काम खराब हो जाता है, बिजली जो से ना आग लग जाती है, स्पारिंग होती है, ऑटोमेटिक जो है ना 20-20 मीटर लगे हुए हैं, इसको चेनिंग की जाए, हर खंबे पे लगे हुए हैं। ताजरों और शहरियों की जानिब से आला हुकाम से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। और अब टोबा टेक सिंह का रुख करें और आपको बताएं कि टोबा टेक सिंह 327 जीम बे भलेर का पार्क तफरीह के बजाय ज़हनी अजियत का सबब बनने लगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। भलेर का पार्क इंतजामिया अफसर शाही की भेंट चढ़ गया। अमला पार्क की हिफाजत में सुस्ती बरतने लगा। सफाई सुथराई के नाकस इंतजामात पार्क पुरफिजा माहौल की बजाय ताफुन फैलाने लगा। शहरी भी फट पड़े, बोले पार्क में घास तक मौजूद नहीं, पौधे मुनासिब देखभाल न होने के बायस सूख चुके हैं, बच्चों के लिए एक झूला तक न लगाया जा सका। इंतजामिया पार्क की बहाली के लिए इकदाम उठाए। हमारा ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह है। यहाँ तो हम ज़्यादा घास वगैरह भी नहीं है बैठ सकें, और बेंच वगैरह भी नहीं है। बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती है जब इस रोड से आते हैं। तो हमारी इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त है कि इसे जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए।
इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि पार्क में घास लगाई जाए, झूले और बेंच नस्ब किए जाएं ताकि पार्क की खूबसूरती में इजाफा हो और शहरी लुत्फ अंदोज हो सकें। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41 टोबा टेक्स। और अब आपको बताएं कि झंग सदर चौक से बदू की मोड़ तक सीवरेज लाइन का मिसिंग लिंक लगाए 3 माह से जायद का अरसा गुजर गया, मगर अहम तरीन कारोबारी मरकज में सड़क की बहाली ताहाल मुमकिन ना हो सकी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रोड से गुजरो रोड की जानिब सेवरी लाइन का मिसिंग लिंक लगाया गया, मगर इस सड़क की बहाली ना हो सकी। मद्दू की मोड़ टोबा रोड से सदर काली चौक तक सड़क खुदाई के बायस टूट फूट का शिकार है। एमसी ने 3 माह कबल सेवरी लाइन डाली, मगर सड़क की बहाली के लिए फंड्स ना मिल सके। टोबा रोड पर भी लगाया गया कट भरा न जा सका। टोबा आने जाने वाले मुसाफिरों की मुश्किलात बढ़ गयी, जिस पर शहरियों ने अफसोस का इजहार किया है। यहाँ जो भी आया है ना, उन्होंने ये उखाड़ के फेंक दिया। पहले वहाँ गटर था, अब ये गटर, अगर आप कैमरे वाले से कहें तो ये दिखा सकते हैं, इसकी ढक्कन जो है वो नशाई लोग ले जाते हैं। शहरियों ने कहा कि अहम तरीन लिंक रोड मट्टी और मलबे का मरकज बनी हुई है, जिसकी बहाली की फौरी जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद इंतजामिया ने शहर को बेयारो मददगार छोड़ दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। मोड़ सरगोदा रोड पर ट्रैफिक सिग्नल गैर फाल। सिग्नल खराब होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। ट्रैफिक सिग्नल बंद होने से शहरियों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ा, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। निशाताबाद पुल के दोनों तरफ में वन वे की खिलाफ वर्जी अरूज पर शहरी मनमर्जी से गाड़ियां गुजार रहे हैं, जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। शहरियों का सीटीओ फैसलाबाद से नोटिस लेने का मुतालबा। ये 2-3 महीने से बंद है और अभी टाइम देख रहे हो 6:30 हुए हैं और अभी काफ़ी रश है और रात को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हादसा होते हैं। एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, खिलाफ वर्जी करते। उधर यू टर्न है जी, उधर दी आन सड़क इधर पुठे पासे दी आ रहे हैं, होनी चाहिए ड्यूटी पुलिस वाले। गैरफाल ट्रैफिक सिग्नल और वन वे की खिलाफ वर्जी से शहरियों को ट्रैफिक जाम जैसे मसाइल का सामना है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद कामरान के साथ अली हैदर भुट्टा, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीउल्लाह गोंदल ने दरियाए चनाब के मुकाम पर पिकनिक पॉइंट्स का दौरा किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने दरियाए चनाब पुल चनाब रेल ब्रिज का दौरा किया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू राना मोहम्मद उमर, असिस्टेंट कमिश्नर शमसुर रहमान, चीफ ऑफिसर बल्दिया मुजफ्फर बेग भी हमरा थे। सफीउल्लाह गोंदल का कहना था कि चिन्योट दरिया, पहाड़, सहरा, जंगलात का बेहतरीन इंतजाज है। शहरियों के लिए दरियाए चनाब पर जल्द पार्क बनाए जाएंगे। वाटर स्पोर्ट्स, रॉक क्लाइंबिंग, रेस्टोरेंट के मंसूबे भी जेर गौर हैं। बहुत ही खूबसूरत इसकी टोपोग्राफी है, दरिया भी है और साथ बाकी पहाड़ भी इसके हैं, तो उसको बेसिकली फैमिलीज के लिए डेवलप किया जाना चाहिए। यहाँ पर आपको पता है कि पहले हमारा यहाँ पर एक चनाब पार्क और टीडीसीबी का सेटअप है, लेकिन इसमें बेसिकली जो कमी मुझे फील हुई है कि यहाँ पर प्रॉपर फन लैंड होना चाहिए, फैमिलीज यहाँ पर आए, अच्छा रेस्टोरेंट होना चाहिए, उसका व्यू जो है वो दरिया की साइड पे होना चाहिए। दरियाए चनाब फैसलाबाद डिवीजन के शहरियों के लिए बेहतरीन पिकनिक पॉइंट होगा। कैमरामैन औरंगजेब के साथ फकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में रिफा यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल अल खिदमत फाउंडेशन का बच्चों के लिए फनगाला का एहतमाम। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और अल खिदमत फाउंडेशन के इश्तराक से 1500 यतीम मस्कीन बच्चों के लिए फन गाला का एहतमाम किया गया। बच्चों के लिए मुनफरिद झूले, मैजिक शो और खाने पीने के स्टॉल सजाए गए। मेडिकल कैंप और दीगर सहूलियात भी फराहम की गयी। इस मौका पर डायरेक्टर अब्दुल्ला मुदस्सिर और दीगर मेहमान गरामी की शिरकत। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का ये खासा है कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 4 सालों से रिफा के तलबा और तालिबात फैसलाबाद डिवीजन के जो यतीम बच्चे हैं, बच्चियां हैं और उनकी माओं की हिम्मत बढ़ाने के लिए और उनको ये पैगाम देने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो, उनको यहाँ हम रिफा यूनिवर्सिटी में जमा करते हैं और यहाँ पे उनके लिए एक ऑर्फन फन गाला का एहतमाम किया जाता है। एमपी कुदसिया बतूल कहती हैं, बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, इनके लिए काम करने की सख्त जरूरत है। अल खिदमत फाउंडेशन के वॉलंटियर्स भी फन गाला जैसी तकरीबात का इनेकाद करने के लिए पुरअज़्म। इन बच्चों के साथ, इन मुस्कुराते चेहरों के साथ आज इस इवेंट को इसमें मैं शामिल हुई हूँ, तो मैं यकीन जाने के दिल से खुशी है और दुआ गो भी लिए उसकी पूरी टीम के लिए। मतलब बंदा पहले ही इतने ट्रॉमा में होता है, तो उससे निकलने के लिए हम ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। बेशक एक दिन के लिए करवाते हैं, लेकिन एक मैसेज देने के लिए करवाते हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए, कि वो भी एक दिन का ऐसा कोई इवेंट अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं और इन बच्चों को दे सकते हैं। डायरेक्टर ऑर्फन फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम फैसलाबाद डॉक्टर अब्दुल जब्बार अब्बासी भी तकरीब में शरीक हुए। कैमरामैन शाजिब अली के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद चनाब क्लब के इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी अरूज पर। सदर मक्की क्लॉथ मार्केट सुल्तान बट की रिहाइशगाह पर उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी चनाब क्लब
शेख असगर की एजाज में शाही का एहतमाम। टिकट होल्डर PP 117 ख्वाजा मोहम्मद रिजवान और सीनियर लीगी रहनुमा आबिद शेर अली बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। अरसलान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। नाब क्लब के इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी जो है वो रूज पर पहुंच गई है और उम्मीदवार बराज सेक्रेटरी शेख असगर के एजाज में शाही का एहतमाम किया गया। मेरे साथ मौजूद भी है, इनसे बात भी करते हैं। बताइएगा सर, कैसी तैयारी है आपकी और कैसा होने जा रहा है इलेक्शन? इलेक्शन 1 to 1 है और इंशाल्लाह बहुत बेहतर तरीके से हमारी कैंपेन जा रही है। मेरे तमाम सपोर्टर्स, मेरे तमाम दोस्त बहुत मेहनत कर रहे हैं इसमें और मैंने भी इसमें बहुत मेहनत किया और इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से इन सब दोस्तों की वजह से हम भारी अक्सर से कामयाब होंगे इंशाल्लाह। आप ऐसा बताइएगा कि कैसा ये इलेक्शन होने जा रहा है और आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? जी, शेख असगर साहब माशाल्लाह पहले भी 2 मरतबा चनाब क्लब के सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं, तो ये बहुत बेहतरीन कैंडिडेट हैं और इंशाअल्लाह ताला मिलकर इनके साथ क्लब की फलाह व बहबूद के लिए और काम करेंगे। तो एक्सपीरियंस पर्सन है, तो हमारी दुआएं भी, वोट सपोर्ट सब असगर साहब के साथ। ख्वाजा साहब, आप बताइएगा कि ये इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या स्टांस रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सुल्तान भट्ट साहब के यहाँ अशाइये पर आए हुए हैं और यहाँ सब दोस्तों ने अहद किया है कि हम अल्लाह के फजलो करम से 27 नवंबर को शेख असगर साहब को जिताएंगे और 27 नवंबर का दिन शेख असगर साहब की फतह का दिन होगा। फतह का दिन होगा और इंतखाबात के हवाले से जो गहमा गहमी अरूज पर पहुँच गई और इसी हवाले से शेख असगर जो कि सेक्रेटरी के उम्मीदवार उनके एजाज में शाही का एहतमाम किया गया। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। और नाजरीन, फैसलाबाद में स्मॉग ने जहां मामलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर किए हैं, वहीं खेलों के मैदान भी वीरान हो गए थे। स्मॉग छटते ही मैदान दोबारा आबाद होना शुरू हो गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जहरीली फिजा के खौफ से मुलतवी किए गए प्रोग्राम दोबारा शुरू होने लगे। मैदानों की रौनकें भी बहाल, खिलाड़ियों ने कमर कस ली। खेलता पंजाब के तहत मुकाबले कल से शुरू। कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन और टेप बॉल क्रिकेट के होंगे तगड़े मुकाबले। इफ्तिताही तकरीब हॉकी स्टेडियम मदीना टाउन में मुनक़िद की जाएगी। खेलता पंजाब के तहत मुकाबले हॉकी स्टेडियम फैसलाबाद, अलफतेह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और क्रिसेंट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मुनक़िद होंगे। कैमरा टीम के साथ अरसलान दुर्रानी, सिटी 41 फैसलाबाद। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।